If you look at it, 65%, percent of that 65 pinechet comes from पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप, वो भागीदारी लोग हैं। बहुत बढ़िया कंपनीज नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं, भागीदारी लोग का 65% नेशनल इनकम। 90% इन इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल ऑन देयर ओन, गवर्नमेंट चाकरी भी नहीं, बहुत बढ़िया कंपनीज भी नहीं, दे आर जस्ट ऑन देयर ओन। 90% दिस मच, इतना बढ़िया शेयर है नेशनल इनकम में, इतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। दे हैव बहुत प्रॉब्लम्स हो गया ये ग्रुप का, छोटे से बिजनेस वाला, एक कंस्ट्रक्शन में भी आए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आए, वो दुकान बहुत है, यहाँ पर ये क्या बोलता है वो रेस्टोरेंट, ढाबा, और प्लम्बर, फिटर, कारपेंटर, पेंटर, सब काम में आए। 4 बढ़िया प्रॉब्लम है उनका। फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑल ऑफ अस नो bribe and corruption, भ्रष्टाचार, everybody is talking about it. So अभी वो बोलता है 30% आपका इनकम टैक्स रेट है, 30% अभी अच्छा रेट है। वो कल एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट गवर्नमेंट का वो भी बोलता है 30% रीजनेबल, यूरोप भी 30%, यूएस में भी 35%, 30% इनकम टैक्स रेट है, और 10% 15% ब्रेबरी है, भ्रष्टाचार, वो भी यू हैव टू ऐड इट। ये क्या बोलता है वो, ऊम टू टूम्ब इंडिया में भ्रष्टाचार है। बर्थ सर्टिफिकेट में भी आप ब्रेबरी करते, डेथ सर्टिफिकेट में भी मरने का बाद में यू हैव टू गेट द सर्टिफिकेट। I tell my wife one good thing is after my death I don't have to pay bribe because she has to pay to get the death certificate. This is बहुत लंबी कहानी है. Every truck people, we estimated at Bangalore से institute में every truck, ये लॉरी बोलता है, every truck driver या truck owner 1 lakh he pays bribe in 1 year. Every truck person pays 1 lakh as bribe. We estimated that. We worked on that national scale. In India, though 20 lakh vehicles है, 20 lakh vehicles है. You can find out if 1 lakh per annum for one vehicle, 20 lakh vehicle का इतना बढ़िया bribe. As an example. So बहुत बढ़िया problem भ्रष्टाचार for the small business people. Second is interest rate, credit. My flower girl, you know, सवेरे सवेरे वो फूल देता है. She pays 0.5% per day. एक दिन का 0.5%. For 100 rupees, 50 पैसे. If you make annual rate 180% है. बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है. बहुत इंडिया में एक चमत्कार है. स्मॉलर यू आर, लार्जर इज योर इंटरेस्ट रेट. बहुत बढ़िया आदमी का कम इंटरेस्ट रेट है, बहुत छोटे आदमी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट है. दैट इज द सेकंड मेजर प्रॉब्लम है. थर्ड प्रॉब्लम है वो बहुत ग्लोबल कंपनीज, वॉलमार्ट और बहुत ग्लोबल कंपनीज यहाँ से वी आर गोइंग टू वेलकम द रिफॉर्म्स. तो ये छोटा दुकान वाला, ये छोटा बिजनेस क्या करेगा? That is a major threat for them. Last problem, Gurumurthy ji will also explain. Social security. In the old age, there is no support system. Families are declining. There is a need to strengthen the families in India. We have to inculcate family values. Govindacharya, he told about cultural capital. That is our basic philosophy. Unless we strengthen our family values, the social security problem cannot be solved. It's a huge problem, both for people who become old age and other thing. Pension bhi nahi hai, self-employed ka pension, no government job, chakri hai, so there is no pension.
So this is for people who are within. Estimate says every year at least 30% of our national income is coming out of this corruption and black money. बाहर से भी problem है. In Switzerland bank, outside also, there is a huge amount of money, Indian money kept abroad. There is problem inside, there is problem outside. Bahar, that is actually treason, that is Desh Virodhis, who are keeping money outside. This is our money. This is held by all big leaders, business people, cinema people, political people, all fellows are keeping money abroad. That is the 1-point program we should take up. Because money abroad is, that is the Gangotri of corruption. I should not insult Ganga, but that is the Gangotri of corruption. Origin of corruption is money kept in Switzerland. The local corruption be high. Local money at least rotates locally. Outside money is kept there. And the security implications are there. So what I would request Babaji to take up the cause of money kept in Switzerland. As I told in Delhi, it is just Sridhan. It is India's money. Bharat Mata ka Sridhan. The Bharat Mata ka Sridhan, no, स्विट्जरलैंड में है. वो अभी नया ये क्या बोलता है, श्रीलंका, अशोक वन वहाँ पर है. तो बाबा must bring it back. He must bring it back. What we can do, simple steps, sir. It is estimated 50 करोड़ मोबाइल फोन है इंडिया में. 40 करोड़ फोन ऑपरेशनल भी है, रेगुलर 40 करोड़ फोन ऑपरेशन भी है. सब बाबा's followers should start a movement, SMS movement. ये 25 लाख करोड़ वापस लाओ. एक पॉइंट प्रोग्राम, 1 point program. I प्रणाम करता है बाबा का. बाबा should start this SMS. First SMS, 1 point program, 25 लाख करोड़ वापस लाओ. ये सरकार, कोई भी सरकार, it doesn't matter. And this will have very big impact. I think this is my humble request. It's a huge amount of Indian money is sitting abroad and we cannot tolerate it. And we should not tolerate it. So we should strengthen Baba's hand. And people like him are the last hope in this country, let me tell. You can't trust netas. बहुत बढ़िया business people, they don't care. So he represent actually the Indian culture. So Samskriti ka Kampurna. So he is the best hope. So I request 1 point program, Sridhan Vapas Lao. And I give my pranams to Baba. हमारे वैद्यनाथन जी इतने प्यारे हैं, वो अंग्रेजी भी बोलते तो हिंदी बोलते जैसे लगते हैं, और अपनी बात को इतने हल्के मूड में कहते हैं कि देखो अपनी सीता माता अशोक वाटिका का अब ये लैंड चेंज हो गया है. पहले माता सीता का हरण करके कहाँ रखा था, श्रीलंका में. अब वो लैंड शिफ्ट हो गया. वो क्या हो गया, स्विट्जरलैंड. वहां से अब आपको राम बन के, हनुमान बन के अपने सीता माता को वापस भारत में प्रतिष्ठापित करना है और भारत माता को बचाना है सीता माता से. और ये जो SMS मूवमेंट की बात की है भाई वैद्यनाथन जी ने, तो अब ये जितना भी है पैसा अकेले स्विट्जरलैंड में ऐसे 70 टैक्स हेवन है. कितने, 70 टैक्स हेवन है. मैंने 70 बोला तो उधर से 70 बोला उन्होंने, इतना हिंदी सीख गए.
70 टैक्स हेवन है, तो उसमें एक एक कंट्री के खिलाफ अलग अलग मुहिम भी चले तो 50 लाख करोड़ तो कम से कम स्विट्जरलैंड में होंगे या उससे ज्यादा अकेले। कोई 75 लाख बोलता है, कोई 50 लाख करोड़ बोलता है, इसका पूरा सोर्स भी और पता लग जाएगा। 50 लाख करोड़ रुपए लाओ, भारत का इकोनॉमी और करेंसी स्ट्रॉन्ग बनाओ और $1 में $50 पाओ, ऐसा भारत बनाओ। तो आपको एसएमएस की लैंग्वेज बना दिया, इसको अभी फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे। वैद्यनाथन जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिस प्रकार के एक नई मुहिम की एसएमएस आंदोलन की बात आदरणीय वैद्यनाथन जी का उसका समर्थन किया है। हमारे युवाओं का एक नया संगठन पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी उद्घोषित किया है, उसका नाम है युवा भारत। हमारे मध्य में श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के प्रमुख सामाजिक समरसता के में जिनकी बहुत अहम भूमिका है, गुजरात से चलकर हमारे मध्य में आए हैं। बहुत ही सुशील संत और बहुत विद्वान संत हमारे मध्य में हैं। इनको बहुत हम हृदय से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान की ओर से आप सब की ओर से एक बार जोरदार कत्थध्वनि के माध्यम से आदरणीय पूज्यपाद स्वामी कृष्णमणि जी महाराज। पूज्य कृष्णमणि जी महाराज पहली बार हम नेपाल में मिले हैं, वहाँ पर भी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बहुत सेवा के काम चलते हैं। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि वहाँ पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा हमारे योग शिक्षक और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं नेपाल में। और नेपाल हमारा दुनिया का सबसे बड़ा मित्र राष्ट्र है। हमारा वहाँ से रोटी बेटी का संबंध है, बहुत गहरा धर्म का संस्कृति का संबंध है वहाँ। और पूरे देश भर में दुनिया के अनेक देशों में पूज्य महाराज श्री ने एक बहुत बड़ा सामाजिक आध्यात्मिक धार्मिक आंदोलन चलाया हुआ है और उनका हृदय से बहुत गहरा अनुराग है। कृष्ण प्रणामी धर्म संप्रदाय एक बहुत बड़ी पावनी संस्कृति है हमारे संतों की तप की। और उसके बाद में मैं खुद जो है पूज्य महाराज श्री के जो है पीठ में गया और महाराज श्री के साथ एक बहुत गहरा आत्मा का संबंध स्थापित हुआ। और पहली बार श्रद्धेय पूज्य वंदनीय कृष्णमणि जी महाराज पतंजलि पीठ में आए हैं। उनका प्रथम आगमन पर सबकी ओर से उनका हृदय से इन नवरात्रों के पावन दिनों पर बहुत बहुत अभिनंदन वंदन प्रणाम। मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम वंदनीय भारत की आत्मा कहें, वर्तमान भारत की तो अत्युक्ति नहीं होगी। ऐसे बाबा रामदेव जी महाराज, हिंदू धर्म आचार्य सभा के संयोजक, विभिन्न सेवा प्रकल्पों के सूत्रधार, ऐसे वयोवृद्ध परम आदरणीय स्वामी श्री दयानंद जी महाराज, हमारे ही निकट मैं गुजरात के जामनगर से हूँ, तो अति निकट राजकोट में रहते हैं और हिंदू धर्म आचार्य सभा के महामंत्री एवं भारतीय संस्कृति को गतिशीलता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों में विचरण करते हैं और सेवा कार्य करते हैं। ऐसे परम आदरणीय स्वामी परमात्मानंद जी, मंचस्थ मौलाना जी और मंचस्थ सभी महानुभाव, विद्वद्जन, संतजन, तत्वचिंतक एवं राष्ट्र चिंतक, मुझे प्रथम बार पतंजलि योग पीठ में आकर अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ।
पूरे राष्ट्र को स्वस्थ राष्ट्र और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए जिन्होंने शंखनाद किया है, ऐसे परम आदरणीय स्वामी रामदेव जी के इस परिसर में काफ़ी स्वस्थता, स्वच्छता और सुगंध चारों ओर प्रसरित हो रही है। आज देश के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। यद्यपि भारत के संत हमेशा अध्यात्म का ज्ञान देते हुए पूरी दुनिया को चरित्र की शिक्षा देते हुए आए हैं, किंतु किसी मूल्यवान वस्तु को रखना होगा तो पात्र भी चाहिए ना। यदि हमारी पात्रता ही नहीं होगी, हमारा राष्ट्र ही नहीं होगा, राष्ट्र स्वस्थ नहीं होगा, राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा, तो सारी शिक्षाएं हम कहाँ देंगे। कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ एक बार, और भारत माता का चीरहरण बार बार होता आ रहा है। शुरू तो कहाँ से कहें, किंतु जो जाहिर हुए हैं ऐसे चीरहरण के कार्यक्रम अभी स्पेक्ट्रम आवंटन तक और इससे आगे भी इतने कुछ के तो नाम प्रकाशित हुए हैं, किंतु अनामी तो कितने घोटाले होंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। देश के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है। जितने दुष्ट वृत्ति के लोग सक्रिय और संगठित होते जा रहे हैं, तो उसमें सद्वृत्ति के, दैवी संपदा वाले और सच्चरित्र लोग, जैसे मौलाना जी कह रहे थे, अच्छे नोटों को अपने पर्स में रखेंगे, बटुआ में रखेंगे, और खराब नोटों को हम बाहर वितरित करते हैं। तो ये परिस्थिति देश की है। सज्जनों की निष्क्रियता और सज्जनों का एकत्रित ना होना, ये देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है। दुर्जनों की सक्रियता से देश जितना बर्बाद हो सकता है, हमें लगता है कि सज्जनों की निष्क्रियता से उससे अधिक बर्बाद होगा। इसलिए बाबाओं को आगे आने की आवश्यकता पड़ी। बाबा रामदेव जी ने सबसे पहले स्वस्थ भारत की संकल्पना की और योग का प्रचार प्रसार किया, भारत में नहीं पूरी दुनिया में। और अब समृद्ध भारत की संकल्पना की है, और भारत माता समृद्ध रहे, और भारत माता की संतान जो प्राचीन काल से कभी यहाँ तो ये देश कभी भिखारियों का रहा ही नहीं था। 1000 वर्ष से अधिक हो गए हैं लोग भारत को लूटते आए हैं। कुछ वर्ष तक, कुछ सदियों तक बाहर के लोग आकर के लूट करके ले जाते थे, और अभी ऐसी परिस्थिति है यहीं के लोग लूट करके बाहर ले जाते हैं।
इसके पीछे लोक जागरण, जन जागरण, अभी एसएमएस की बात हो रही थी, 40 करोड़ लोग यदि एसएमएस करेंगे तो उसमें दम होगा। संघे शक्ति कलौ युगे। संविधान का निर्माण लोकतंत्र में संसद से होता है। संसद की एक गरिमा रही है, प्रतिष्ठा रही है, किंतु देश कल्याण के, देश हित के बिल एक तो वहां तक पहुंचते ही नहीं है, और पहुंचे तो कब दब जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसका कारण क्या है? जिन लोगों को आप वोट दे करके और नोट दे करके संसद में भेजते हैं, तो उनमें स्वच्छता ना हो तो इसके कारण ही होता है ना। इसलिए अब ऐसे लोगों को भेजने की आवश्यकता है जिनके अंदर स्वच्छता हो। लोकतंत्र का नियम है कि इसमें वोट देना अति आवश्यक है, किंतु जिन लोगों को ऊपर पहुंचाया गया है उनको वापस बुलाने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, और वो व्यवस्था बनाने के लिए कोई प्रयत्नशील ही नहीं है। जब जब देश में समस्याएं आई, यही नहीं पुराणों में आता है, स्वर्ग में भी जब कभी शासन व्यवस्था में अतिक्रमणता हुई तो उस समय इस देश के ऋषियों ने जाकर शासकों को ललकारा, उनको समझाया और मार्गदर्शन दिया। तो संतों को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है ही। भले दुनिया में कोई भी कुछ कहे, भारत हमेशा आध्यात्मिक राष्ट्र रहा है। भारत की संपत्ति आध्यात्मिक संपत्ति रही है। भारत की नहीं, पूरी दुनिया की यदि संपत्ति है तो अध्यात्म ही है, किंतु ये धर्म ग्रंथों में रही, हमारे व्यवहार में नहीं आई। इसके कारण सारी समस्याएं पनप रही है, बढ़ रही है। अब हमें अपने दर्शनों को, सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना है। देश के सामने भ्रष्टाचार का मामला हो, काला धन का मामला हो, तो अपने यहां द्रव्य शुद्धि की बात कही है। तो सबसे पहले संपत्ति का उपयोग, दानम भोगो नाशः, सबसे पहले दान में कहा। तो पहले विनिमय करो लोक कल्याण के लिए, तो उसके बाद जो बचा है तो उसको अपने और परिवार के लिए प्रयोग में लाओ। यदि दोनों काम नहीं करोगे तो उसकी तीसरी गति होगी। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत कुछ चिंतन करके दिया है, हमारे सामने बहुत कुछ दिया है, तो उसको हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी कहा जा रहा था, हार्डवेयर देशी है और सॉफ्टवेयर परदेशी है। ये बिल्कुल सही बात है। हमारी शिक्षा प्रणाली जो कुछ समझाया जा रहा है वो बाहर के अनुरूप उस ढांचे में ढाला जा रहा है, तो इसके कारण बहुत सी विकृतियां आई। आज नारी शक्ति के लिए देखें कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, तो उस नारी को देश के कौन से ऐसे शहर होंगे जहां वो अकेली घूम फिर सकती होगी।
देश की राजधानी, तो वहां क्या परिस्थिति है? तो इतने लूटफाट मचे हैं। तो इन सब के पीछे क्या है? तो राष्ट्र का चिंतन नहीं हुआ है। आज अध्यात्म के चिंतन के साथ साथ राष्ट्र चिंतन की अति आवश्यकता है, जो स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं। राष्ट्र चिंतन ही नहीं, शुद्धिकरण का काम हो रहा है। गंगा का शुद्धिकरण, भारत माता के अंतर्गत भारत माता के सपूतों के मानस गंगा में शुद्धिकरण लाने की आवश्यकता है। तो ये कार्य हो रहा है। तो एक अन्ना नहीं, हजारों अन्ना को इस कार्य में आगे आना होगा। पहले नेताओं के प्रति कितनी श्रद्धा थी। जब देश में अनाज की कमी हुई तो देश के प्रधानमंत्री उस समय के लाल बहादुर शास्त्री ने जब आह्वान किया कि आप चिंता न करें, थोड़ा उपवास किया करें, हफ्ते में एक दिन भी उपवास करें तो कितना अनाज बचेगा। आज कोई ऐसे व्यक्ति देश का बागडोर हाथ में लेकर बैठे हैं कि नहीं? तो ऐसे व्यक्तियों को वहां तक पहुंचाना है। तो स्वामी जी को किसी पद पर नहीं बैठना है, किंतु जो पद पर बैठे उनके विचार शुद्ध हों, उनका आचरण शुद्ध हो और वे देश की सेवा के लिए बैठे। तो इस प्रकार की ये मुहिम है, ये आंदोलन है। तो हमें सबको इसमें साथ देना है, राष्ट्र को बचाना है, भारत माता की आंसुओं को पूछना है। इतना ही नहीं, उसको पुष्ट करना है, समृद्ध करना है। कभी कभी भक्ति भी विभिन्न स्थानों में विचरण करती हुई कृष्णता को प्राप्त हुई थी। आज भारत माता कृष्णता को, जीर्णता को प्राप्त हुई है और उसको परिपुष्ट करना है। उसके लिए हम सभी को साथ में रहकर आगे बढ़ना होगा। हम सभी इसमें सहयोगी होंगे, हम सब सहयोग करेंगे। भारत का आध्यात्मिक चिंतन, राष्ट्र चिंतन, ऋषि महर्षियों का ये सारा चिंतन है। तो इस पर जरा सा विचार करेंगे और हृदयंगम करके जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। आज बेरोजगारी की समस्या बड़ी समस्या बनती जा रही है। महाराजा अग्रसेन हुए हैं इसी देश के सपूत, तो उन्होंने सहयोग की भावना कितनी अच्छी रखी थी। कोई भी निर्धन व्यक्ति है उसको 1 ईंट और 1 रुपया दो, तो क्या हम 1 ईंट और 1 रुपया देने के लिए विचार करेंगे, संकल्प करेंगे? तो इस देश में कोई झुपड़ी में कोई रहेगा ही नहीं। तो बस मैं अधिक नहीं कहूँगा। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को साधुवाद देते हुए, क्योंकि सबने बहुत कुछ बातें कही है, मात्र अब तो उसको चरितार्थ करने की आवश्यकता है। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। और इन्होंने राष्ट्र की जो संकल्पना की है, तो यहाँ पर एक पुस्तिका हमारे सामने आई है कि हमारे सपनों का भारत। मैं कहा करता हूँ, जो रात में नींद में देखी जाती है, ऐसे सपनों का नहीं, जागते हुए हमें सपना देखना होगा तो ही वो सपना साकार होगा। ये जागते हुए सपनों की बातें इसमें कही गई है और हम जागते हुए सपन देखें और उसको साकार बनाने में आगे बढ़ें। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में मेरी वाणी को ये विराम देता हूँ। प्रणाम।
हमारे तपस्वी और मनस्वी संत आदरणीय श्री कृष्णमणि जी महाराज ने अपना आशीर्वाद दिया, उनका हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए एक सादे कपड़ों में संत के रूप में आज पतंजलि योगपीठ में आदरणीय श्री गुरु मूर्ति जी हमारे मध्य में है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन। मैंने बहुत बुद्धिमान लोग देखे हैं, लेकिन गुरु मूर्ति बुद्धि में भी गुरु। और मैंने इनका पहला भाषण स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली में सुना। क्या शौर्य है, क्या जज्बा है, क्या दृष्टि है, कितनी गहराई। और मतलब वो, क्योंकि हिंदी में पूरा भी बोल नहीं पाते हैं, थोड़ी बात तो कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से इनके भीतर एक अग्नि है, उसमें हमें इस भारत का जो स्वर्णिम भविष्य भारत की बात कर रहे थे पूज्य श्रद्धेय कृष्णमणि जी महाराज, हम सब जो भारत का सपना देखते हैं वो सपना जरूर साकार होगा, क्योंकि हमारे पास में इस देश के लिए जीने वाले, सोचने वाले और एक स्वर्णिम भारत बनाने का सामर्थ्य रखने वाले ऐसे समर्थ लोग हमारे साथ में। गुरुमूर्ति जी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य स्वामी जी रामदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती, who has shown personal lead to me in many aspects of my life. मैं हिंदी में ही मैं भी बोलूँगा, अंग्रेजी में also भी I will be talking. छूट है दोनों में। और आपको जब कभी दिक्कत हो हिंदी बोलते हुए तो बीच में अंग्रेजी बोल देना। हम लोगों को खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। संत लोग, इमाम लोग और एल्डर्स इन द डाइस, भाइयों बहनों, मेरा नाम गुरु मेरा माता पिता ने रखा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। सब हम गुरु ही बोलते हैं। मेरा नाम गुरु है, स्टेटस गुरु नहीं। वो आज दे दिया आपको यहाँ से। ये आसन सिद्ध है श्रोता। इमाम साहब ने कहा, हम जब प्राइवेट डिस्कशन में थे, जो कहना है वो शार्ट टाइम में भी कह सकते हैं। लंबा भाषण देने का प्रिपरेशन नहीं चाहिए, छोटा भाषण देने का बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होना है। छोटा भाषण देने का जो विजडम चाहिए, जैसा थिंकिंग पावर चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। मैं लंबा भाषण देने वाला हूं बट इधर नहीं दूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमको बोलने को कहा गया था। ये तो बड़ा सब्जेक्ट है, इसको एक सेशन में 15-20 मिनट में डील करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं एक ही रिक्वेस्ट बाबा रामदेव जी के पादचरण में रखना है। जो पूंजी इधर से बाहर गया है उसका एस्टिमेट दिया, इसको वापस लाने में क्या तकलीफ है, इसके बारे में हम सोचना चाहिए। विश्व भर एक मूवमेंट चला रहे हैं सभी गवर्नमेंट्स, वो अमेरिका हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, सभी गवर्नमेंट इसके खिलाफ टैक्स हेवन के बारे में जो कहा गया था, स्विट्जरलैंड के बारे में जो कहा गया था, सीक्रेट बैंक के बारे में जो बात उठा गया था, इसके खिलाफ ये बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं 2008 से लेकर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया। सब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इसके बारे में बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में बात हो रहा है, G20 में बात हो रहा है। हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर ने हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जनवरी में। हमारे ऑफिसरों को ट्रेनिंग देंगे,
उसको एक रूल्स बनाएंगे। दूसरे गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, वो जो यूबीएस बैंक है स्विट्जरलैंड में, उनका मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाते हैं, हमको एक 5700 लोगों का अकाउंट का डिटेल चाहिए, अदरवाइज आपको जेल में बंद करेंगे। ऐसा कह के वो डिटेल लाके, ये डिटेल जो कम डिटेल दिया इसके लिए $800 मिलियन फाइन लगा अमेरिका में। अमेरिका ऐसा करते हैं अमेरिका और कई लोग। इधर वैद्यनाथन ने कहा जर्मन गवर्नमेंट एलजीटी बैंक जो मुख्य अधिकारी था उसको ब्राइब देके, गवर्नमेंट ब्राइब देके सीक्रेट अकाउंट निकलवाया। ऐसा काम करते हैं विश्व भर कई गवर्नमेंट्स। हम कुछ नहीं करते हैं, इसका कारण क्या है? नहीं, हम उल्टा करते हैं, वो हमारा छिपा के रखे इसलिए रिश्वत देते हैं। कारण क्या? यही कारण है, जो हमारा पावर स्ट्रक्चर में है, मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स को चलाने वाला रिमोट कंट्रोल जो है वो सबका पैसा है उधर। ये अनुमान की बात नहीं। 11 नवंबर 1991 में एक बड़ा स्विट्जरलैंड मैगजीन में हमारा फार्मर प्राइम मिनिस्टर का फैमिली के सीक्रेट अकाउंट में 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक है, ऐसा इंफॉर्मेशन पब्लिश किया है। ऐसे लोग बैठे हैं तो पोजीशंस में, पावर में, चेयर में, ये पैसा वापस लाएगा? यही मुख्य बात है। इसलिए मैं इधर सब लोग बैठे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आपका बात सुनते हैं। आपका दायित्व तो यही होगा, वैद्यनाथन ने कहा, जो पावर में है अभी वो इसको वापस नहीं लाएगा। ये खुद का पैसा है उधर, इसलिए स्टेप नहीं लेगा। ये आप ही ये कर सकते हैं। ये जनमानस बनना है, ये पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स में जाके नहीं कर सकते हैं। आप जिनको सुन के खड़ा करेंगे वो ये काम करेगा। You cannot find 500 honest MPs in this country. Many honest people have turned dishonest. So we have to be Ankush. We should never become participants in politics. This is my experience of 30 years. I want to place it for the consideration of Swamiji. Getting into politics is the worst act that we can do for good people today. We must become Ankush in politics. We must become watchdogs of politics. We must make them do things. We must expose the corrupt. We must expose them before the people. You cannot get honest people elected and keep them honest. So my view is, launch a huge mass movement throughout the country. You give a call, all the sons should come, but no political action directly. That is my request, that is my prayer. Based on my experience, I place it at the This is our vision. Thank you so much. And this is our mission.